Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about physical and chemical changes, right? So, we have seen that in physical change, that change is reversible, that change is temporary. And in case of chemical changes, we have seen that those changes are irreversible and that are the permanent changes. In case of physical change, there is no new substance formed, but in the case of chemical change, new substances are formed. So I hope you all have revised that chapter. And now in today's class, we are going to start with a new chapter, that is respiration in organisms. So now students, let's see what all things we are going to learn in this chapter. So understand the concept of respiration as the process of obtaining energy from food. सो नाउ बच्चों, हम लोग हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे फूड से एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. देन we are going to distinguish between breathing. So what is breathing? Breathing is exchange of gases. So हम लोग distinguish करने वाले हैं breathing के अंदर and the respiration के अंदर. So respiration is the process of energy release from food. After that, we are going to identify and explain aerobic respiration, that is in the presence of oxygen, and anaerobic respiration, that is without the oxygen. इसके बाद we are going to learn the different respiratory organs, that is lungs, spiracles, gills and trachea. Then we are also going to understand the human respiratory system. हमारे human respiratory system को हम लोग समझेंगे, उसके structure and functions के बारे में बात करेंगे. Then we are going to explore the role of oxygen in respiration and its transport through the circulatory system as well. Then we are going to learn about the process of breathing in plants, emphasizing the exchange of gases in leaves. Now students, here we have boot up. So हमारे पास एक इमेज है. So an image of vital physiological system of a body हम लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है. So which body system is shown in the given image? So बच्चों, ये कौन सा body system है? This is respiratory system. So now you all are going to write over here that this is respiratory system. So students, we are going to write over here that this is respiratory system. Now next we have which gas is released during this process, circle it, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. सो बच्चों, इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमारी गैस कौन सी रिलीज होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो हम लोग यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कल करेंगे. Then name the organs responsible for this system to function properly. So अब हमको यहाँ पर कुछ कुछ organs के नाम लिखने हैं जो कि सिस्टम को अच्छी तरीके से वर्क करवाने में हेल्प कर रहे हैं. So students, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? We have lungs, we have trachea. So students, we have lungs, we have trachea. After that, we also have larynx and pharynx. Then we also have our nose, right? So ये सारे organs जो है क्या कर रहे हैं? हमारे system को अच्छे से work करवाने में responsible है. Now students, next we have respiration. So now we are going to understand the respiration कि respiration होता क्या है. So students, respiration is a fundamental process for all living organisms because it is the means by which they obtain the energy required to sustain life. So बच्चों, respiration है क्या? Respiration एक बहुत ही fundamental process है and इस process के through ही सारे के सारे living organisms जो है वो क्या obtain करते हैं? Energy. और इस energy के through ही वो अपनी life को maintain कर सकते हैं. So every organism, चाहे वो smallest bacteria है, whether it is largest mammals, all these organisms are made up of cells. So we all know that cells क्या होते हैं? Cells हमारी life के basic building blocks है, right? इनके बिना हमारी bodies जो है या फिर हमारी body का structure, हमारी body का function जो है वो हो ही नहीं पाता. So now हर सेल बच्चों क्या करता है? हर सेल जो है वो अपना एक क्रिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. एंड व्हाट इज दैट क्रिटिकल फंक्शन? दैट इज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. सो हर सेल के अंदर हमको न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट दी न्यूट्रिएंट्स. देन हर सेल क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है. देन एक्सक्रीशन भी करता है, इसका मतलब जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसको बॉडी से रिमूव भी करवाता है. देन वी हैव रिप्रोडक्शन, यानी कि क्रिएटिंग ऑफ न्यू सेल्स. सो बच्चों,
ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। हाउएवर इनमें से कोई भी प्रोसेस जो है वो विदाउट एनर्जी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि इन सारे प्रोसेसेस को करने के लिए, हमारी लाइफ को सर्वाइव करवाने के लिए हमको एनर्जी तो चाहिए। सो बच्चों, एनर्जी जो है वो आती कहाँ से है? एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम। सो अगर हम लोग खाना नहीं खाते तो हमको क्या लगता है? हमको बहुत ज्यादा लेजी फील होता है, बहुत ज्यादा थका हुआ फील होता है। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं उसी से हमको मिलती है एनर्जी। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों होता क्या है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही खाना जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है एंड उसी ब्रेक डाउन की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सो इस एनर्जी को अब सेल्स यूज करते हैं सो दैट कि वो अपने वेरियस फंक्शंस यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें जो है वो परफॉर्म कर पाए। हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि विदाउट रेस्पिरेशन कोई भी सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता एंड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो नाउ बच्चों, लेट्स सी कि स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। सो रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स है एंड वो स्टेप्स क्या है? ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दोनों चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है एंड इसी की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। सो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये एनर्जी जो है वो हमको मिलती कहाँ से? ये हमारे फूड के ब्रेकडाउन की वजह से मिलती है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग को। सो ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास 2 स्टेजेस है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सो बच्चों, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इनहेल करना। तो हम लोग क्या इनहेल कर रहे हैं? हम लोग क्या ब्रीद इन करते हैं? हम लोग एयर को ब्रीद इन करते हैं हमारे एनवायरमेंट से, और इस एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एज वेल, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है, राइट। देन हमारा दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग आउट यानी कि बाहर निकालना। सो बच्चों, जब हमारी बॉडी हमारे ऑक्सीजन को यूज कर लेती है जो हम लोगों ने इनहेलेशन से लेकर आए, सो जब ये ऑक्सीजन यूज कर लिया जाएगा, सो अब क्या होगा? हमारे सेल्स के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हो पाएगा, और जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हमको इसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम जब भी ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो द ऑक्सीजन वी इनहेल, जो भी ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद ये हमारे लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है हर बॉडी पार्ट के पास। एंड ट्रांसपोर्टेशन में कौन काम आता है? ब्लड। देन दिस इंश्योर्स दैट एवरी सेल रिसीव्स द सफिशिएंट ऑक्सीजन। एंड बच्चों, इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही क्या होता है? ये इंश्योर हो पाता है कि हर सेल को ऑक्सीजन जो है वो मिल जाए। नाउ अब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। सो बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। सो इसी प्रोसेस की वजह से क्या होएगा? हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो वंस ऑक्सीजन रीचेस द सेल्स, एक बार जैसे ही ऑक्सीजन सेल के पास पहुंच जाता है, सो अब ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, एंड वो रोल प्ले क्या है? कि ये फूड को ब्रेक डाउन करवाता है। सो अब जैसे ही ये ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करवाएगा तो उसके अंदर से क्या रिलीज होती है? एनर्जी। सो हम लोग ये बोल सकते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इसका मतलब बच्चों, जो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ही क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज जो कि एक टाइप की शुगर है, वो ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होकर वो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी यूज कर सकती है। सो हम हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इक्वेशन टर्म में कैसे बता सकते हैं? सो हमारे पास यहाँ पर है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब शुगर, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। देन वी हैव ऑक्सीजन यानी कि O2। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, वाटर दैट इज H2O, एंड साथ में रिलीज होगी एनर्जी। अब बच्चों, हम लोगों को इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो है वो याद होने चाहिए, बट यहाँ पर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने O2 के सामने 6 क्यों लगाया, CO2 के सामने 6 क्यों लगाया, H2O के सामने 6 क्यों लगाया? क्या हम जब भी CO2, H2O या O2 लिखेंगे हमको हमेशा 6 लिखना होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो ये 6 है, ये नंबर्स हमारी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। सो बैलेंसिंग अभी हम लोगों को नहीं करनी है, बट आप लोगों को इस इक्वेशन को एज इट इज याद करना है। एंड ये गलती मत करना कि जब भी आप कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में O2 लिख रहे हो तो आप उसके सामने जाकर 6 लिख दो, ऐसा नहीं है। ये 6 जो है वो खाली इन्हीं रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए है। सो नाउ बच्चों,
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। सो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन को यूज करता है उसको क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक के जो आगे एयर है उसी से याद रखना कि ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज किया जाएगा। देन ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये बहुत कॉमन टाइप की रेस्पिरेशन है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं एंड ये ऑक्सीजन कंप्लीटली तोड़ देती है हमारे ग्लूकोज को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इसके साथ साथ बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। अभी हम लोगों ने इसकी इक्वेशन भी देखी। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन सम केसेस सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं बिना ही ऑक्सीजन के, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज तो हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो हो रहा है और एनर्जी भी निकलेगी, बट अब यहाँ पर जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है ये ऑक्सीजन के बिना हो रहा है एंड इसलिए इस तरीके की रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जैसे कि यीस्ट एंड इवन इन ह्यूमन मसल्स। एंड ये ह्यूमन मसल्स के अंदर कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। सो एट दैट केस हमारी बॉडी को उतना ज्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, राइट। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल के अंदर यीस्ट के केस में एंड लैक्टिक एसिड के अंदर इन मसल्स यानी कि ह्यूमंस के केस में। एंड इसके साथ साथ क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में एनर्जी तो रिलीज होती है, बट बच्चों जो ये एनर्जी रिलीज होती है ना ये बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बट इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट निकला। अगर हम बात करें यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो वहां पर बनता है अल्कोहल, बट अगर हम बात करें ह्यूमंस मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की तो वहां पर बनता है लैक्टिक एसिड, बट एनर्जी जो यहाँ पर रिलीज होती है वो बहुत ही कम रिलीज होती है। सो यीस्ट बच्चों है क्या, यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंड ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एनारोबिकली ही रेस्पिरेशन करता है, यानी कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है विदाउट ऑक्सीजन ओनली। सो एनारोब्स होते कौन है, एनारोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं। हम लोग तो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, हम लोग ज्यादा टाइम ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, बट ये लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। नाउ इस प्रोसेस के टाइम पे यीस्ट करता क्या है, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है अल्कोहल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड इसके बाद क्या रिलीज होती है, एनर्जी। सो नाउ बच्चों, दिस एबिलिटी ऑफ यीस्ट ही इसी एबिलिटी की वजह से अल्कोहल्स जो है वो यीस्ट की वजह से बन पाती है। इवन हम लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि वाइन एंड बियर जो है वो इसी रेस्पिरेशन मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करवाते हैं। नाउ सिमिलरली हमारे मसल सेल्स भी क्या करते हैं, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, बट खाली छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हमारे पास टेम्पररीली लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। सो नाउ अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हमको कब फील करने को मिलता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जिमिंग कर रहे हैं, हम लोग बहुत तेज भाग रहे हैं, हम हैवी वेट्स उठा रहे हैं। सो उस टाइम पे हमारी बॉडी को जितनी डिमांड होती है ऑक्सीजन की, हम उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा पाते। सो उस केस में हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, उनको एनर्जी तो चाहिए, सो वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड दस एनर्जी भी रिलीज होती है। बट बच्चों ये जो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है ये क्या करता है, ये हमारे को क्रैम्प्स कॉज करवाता है। सो जब भी हम लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमको क्रैम्प्स फील होते हैं, राइट, एंड उस क्रैम्प्स का रीजन क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड ही। सो हियर वी हैव पिक अप मोर। सो द बिल्ड ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कैन लीड मसल क्रैम्प्स एंड फटीग। एंड सी देखो ये आप लोगों को यही बता रहे हैं कि जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, हमको थकान हो जाती है। एंड ये कब होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो अब इसके लिए हमको करना क्या होता है, हमको रिलीव मेथड्स चाहिए होते हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सके। सो इसलिए जब भी क्रैम्प्स आते हैं सो उस केस में हमको क्या बोला जाता है कि हॉट वाटर बाथ ले लेनी चाहिए या फिर मसाज ले लेनी चाहिए। सो इस टेक्निक से होता क्या है कि उस मसल के पास ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई जाती है एंड अब ये लैक्टिक एसिड जो है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन करवाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। एंड इसलिए हमको थोड़ी देर बाद मसाज या फिर हमारे हॉट वाटर बाथ के बाद हम लोगों को थोड़ा रिलीफ फील होता है। Now students, next we have breathing in human beings. So breathing involves intake of oxygen. Breathing का मतलब क्या होता है कि हम लोग intake करते हैं ऑक्सीजन का and release करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का।
सो अब बच्चों ये प्रोसेस होता कहाँ है? दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. अब हमारे ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स है. क्या है वो ऑर्गन्स? नोज, pharynx, trachea, bronchi and lungs. So here we have pick up more. When we hold the breath for a period of time, the body develops strong urge to breathe heavily once breathing resumes, right? So बच्चों जब भी हम लोग हमारी सांस को रोक कर बैठते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है? जैसे ही हम लोग ब्रीदिंग को रिज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत तेज सांस लेने का मन करता है, राइट? सो दिस इज बिकॉज क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग होता है. सो अब ये करता क्या है? दिस हेल्प्स टू रिमूव द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन मोर ऑक्सीजन. सो नाउ हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग. हमारा यहाँ पर एम क्या है? हमको अंडरस्टैंड करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्रीदिंग का फॉर सर्वाइवल. एंड हम ये कैसे कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग द मेथड्स फॉर होल्डिंग वंस ब्रेथ. सो हमको मेथड्स क्या क्या चाहिए? वी हैव टू सिट कंफर्टेबली एंड हमको इंश्योर करना है कि हम लोग एकदम रिलैक्स्ड रहे. हम लोगों को हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स बंद करने हैं विद योर फिंगर्स एंड हमारे माउथ को भी कंप्लीटली टाइट शट करना है सो दैट कोई भी एयर जो है वो एंटर ना कर पाए एंड कोई भी एयर यहाँ से जा ना पाए. इसके बाद हमको क्या करना है? हमको टाइमर को देखना है या फिर वॉच को देखना है एंड हमको ये नोटिस करना है कि हमने कितनी देर के लिए अपना ब्रेथ जो है वो होल्ड कर रखा. सो स्टॉप एज सून. अब आपको ये करते ही नहीं चले जाना है. आपको लग रहा है कि हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप इस चीज को रोक दो. नाउ नेक्स्ट हमको यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करने को मिलेगा कि आफ्टर होल्डिंग आवर ब्रेथ फॉर शॉर्ट टाइम हम लोग कुछ डिस्कम्फर्ट फील करेंगे. हमको कोई स्ट्रॉन्ग अर्ज जो है वो होगी ब्रीदिंग की. सो जितना ज्यादा हम लोग होल्ड करेंगे हमारी ब्रेथ को, उतना ज्यादा हम लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे. एंड हम लोग ये भी नोटिस करेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो और तेज तेज बीट करने लग जाएगा. हम लोग बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करेंगे. सो इसका मतलब हमारे को और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. सो यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है कि ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ब्रीदिंग हमको ऑक्सीजन देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देता है हमारी बॉडी से. सो जब हम लोग ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं, हमारी बॉडी क्या हो जाती है? अनकंफर्टेबल हो जाती है. एंड ये शो करता है कि हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. So now students, here we have nostrils. So we take in air through our nostrils. हम लोग क्या करते हैं? हम nostrils के थ्रू एयर को लेते हैं. So hair और mucus जो कि हमारे nostrils के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डस्ट को ट्रैप करते हैं, जर्म्स को ट्रैप करते हैं जो कि हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. So आप लोगों ने देखा होगा हमारे nostrils के अंदर हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. एंड इसके पीछे का रीजन क्या है? कि ये डस्ट और हमारे जो भी जर्म्स है उनको ट्रैप कर लेंगे. So बच्चों, nostrils also warm the air suited for our body temperature. So nostrils एक और काम करता है. क्या? वो हमारी जो एयर है उसको वार्म कर देता है, so that ये वार्म एयर जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कर जाए. So the air we breathe can contain particles like smoke, dust and pollen. So बच्चों अब हम लोग जो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, उस एयर के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि स्मोक भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकते हैं, पोलन्स भी हो सकते हैं. सो अब जो हमारे नेजल कैविटी के हेयर है वो क्या करते हैं? वो इन सारे पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं. बट कभी कभी क्या होता है कि ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड हमारी नेजल लाइनिंग को इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको स्नीज होता है ना. सो हम लोग उन्हें ये चीज फील करी होगी कि जैसे ही हमको फील होता है हमारी नोज के अंदर कुछ गया है, हम उसी टाइम पर स्नीज कर देते हैं. सो स्नीजिंग क्या करता है? स्नीजिंग एक हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जिससे हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स को फटाफट हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं. एंड ये स्नीजिंग मैकेनिज्म से हमारी जो एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लीन हो जाती है. So it is important to cover the nose while sneezing to prevent spreading these particles to others. अब बच्चों तभी हमसे बोला जाता है कि स्नीज करते टाइम हमको हमेशा हमारी नोज को इस तरीके से कवर करके रखना चाहिए. एंड ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्नीज हम कब कर रहे हैं? जब हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स गए हैं एंड उस स्नीजिंग की वजह से वो पार्टिकल्स बाहर आएंगे. सो अगर हम लोग बिना कवर करे स्नीज करेंगे, सो दैट मीन्स वो पार्टिकल्स हर जगह स्प्रेड हो जाएंगे एंड किसी और को हार्म कर सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव pharynx. सो आफ्टर पासिंग थ्रू nostrils, जैसे ही हम लोग nostrils से पास कर जाते हैं, अब हमारी एयर कहाँ पर जाती है? pharynx के अंदर. एंड ये pharynx जो है ये एक कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर दोनों का. सो हमारा नेजल कैविटी के बाद हमारा जो एरिया आता है वो क्या होता है? pharynx. एंड इस pharynx में एयर भी जाती है एंड यहाँ से फूड भी पास करता हुआ जाता है. सो आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, हमारे पास ये रहा pharynx एंड जैसे ही हमारी नेजल कैविटी खत्म हो रही है, हमारा माउथ का एंड है, यही रीजन क्या है? pharynx. एंड इसीलिए ये कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड दोनों के लिए. Then next we have trachea.
सो ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। एंड बच्चों ट्रेकिया के पास क्या होती है, सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स होती है दैट कीप्स इट ओपन। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फेरिंग्स के बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिया। एंड यहाँ पर आपको कुछ रिंग्स भी फील हो रही है। सो ये रिंग्स क्यों होती है, सो दैट हमारा जो ये विंड पाइप है, ये पाइप जो है वो हमेशा ओपन रहे, ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, सी शेप रिंग्स होती है। एंड एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, लैरिंग्स। सो अगर आप लोग अभी अपने गले को फील करो तो हमको यहाँ पर एक हार्ड सब्सटेंस फील होता है। जब भी हम बोलते हैं तो ये चीज ऊपर नीचे होती है। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। तो हमारा लैरिंग्स ही क्या है, वॉइस बॉक्स, जो कि हमारे ट्रेकिया के जस्ट ऊपर होता है। एंड इसके ऊपर हमारे विंड पाइप की ओपनिंग के ऊपर ही क्या होता है, एक ग्लोटिस होता है। ये ग्लोटिस है क्या, इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लोटिस। एंड जब भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, जब भी हम स्वैलो करते हैं, सो उस टाइम पे ये एपीग्लोटिस हमारे इस विंड पाइप को कवर कर लेता है, सो दैट कोई भी खाना जो है वो हमारे विंड पाइप के अंदर ना जाए। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, आप लोग देख सकते हो कि हमारा ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो रहा है, राइट। एंड इसका एक ब्रांच एक लंग में जा रहा है, दूसरा ब्रांच दूसरे लंग में जा रहा है। सो ट्रेकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। अब इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, जब ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इस डिवीजन को बोलते हैं ब्रोंकाई। एंड अगर एक ही ब्रोंकाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। सो अब ये ब्रोंकाइस क्या करती है, ये हर एक लंग्स के अंदर जाती है एंड वहां पर जाकर ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर ब्रोंकाई जो है फर्दर और डिवाइड हो रही है। सो अब इन और स्मॉलर डिविजन्स को क्या बोला जाता है, ब्रोंकस। सो ब्रोंकस तो हमारा सिंगुलर ब्रोंकाई का नाम है। एंड इनको जो है यहाँ पर ये स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। एंड इस तरह से हमारी लंग्स के अंदर एयर जो है वो जा पाती है। नाउ अब हम बात करेंगे लंग्स की। सो लंग्स क्या है, लंग्स जो है वो मेन ऑर्गन्स है हमारे ब्रीदिंग के लिए ह्यूमंस के अंदर। एंड ये लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है। एंड चेस्ट कैविटी की हर एक साइड पर हमारे पास लंग्स है। सो अब होता क्या है, इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई क्या करती है, वो डिवाइड होती है स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, और इन स्मॉलर ट्यूब्स को क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। अब इसके बाद एयर जो है वो पास करती हुई जाती है इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर से। एंड फाइनली ये पहुंच जाते हैं सबसे छोटे सैक के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, एल्वुलाई। सो हर लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होती है। एंड ये एल्वुलाई के अंदर ही फाइनली हमारी एयर पहुंचती है। सो लंग्स इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक बोनी स्ट्रक्चर भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज। सो अगर आप कभी भी अपनी चेस्ट कैविटी को फील करोगे, आपको बोन्स भी फील होगी। सो ये बोन्स किस चीज की है, रिब केज की। सो अब इन बोन्स के नीचे ही हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ तक अगर हमारी चेस्ट कैविटी है, सो इसके नीचे ही हमारे पास एक मसल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम। एंड ये हमारी चेस्ट कैविटी को सपोर्ट देता है। सो अगर ये पूरा हमारा चेस्ट कैविटी है, सो इसके नीचे एक क्या है, एक मसल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायफ्राग्राम। So now बच्चों, here we have brush up session 1. So name the following the organism used to make beer and wine. So now बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, हमारे पास कुछ questions है and we are going to answer those questions. So first of all हमसे ये पूछा गया कि हमको उस organism का नाम लिखना है। सो बच्चों, सबसे पहले हमसे ये पूछा गया कि हमको उस ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जिसको हम लोग बियर और वाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। सो वी हैव लर्नड अबाउट इट दैट यीस्ट इज द ऑर्गेनिज्म जो कि एनारोबिकली रेस्पायर करता है एंड वो क्या बना कर देता है, अल्कोहल। नाउ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स लैरिंग्स टू दी लंग्स। सो बच्चों, अब लैरिंग्स और लंग्स के बीच में कनेक्शन कौन बिल्ड कर रहा है, दैट इज ट्रेकिया, दैट इज द ट्यूब। देन स्मॉल ट्यूब्स दैट लीड टू एल्वुलाई। सो एल्वुलाई तक कौन सी छोटी स्मॉल ट्यूब्स होती है, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। देन नेक्स्ट वी हैव द सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स। सो वो सैक्स क्या है, वो है एल्वुलाई। देन नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द लंग्स। सो बच्चों, लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब केज। Next we have the flap that prevents food from entering the windpipe and उस flap का नाम क्या है, that is epiglottis. Now students, next we have mechanism of breathing. So बच्चों, breathing is a continuous process. Breathing जो है वो continuously होती रहती है and it is an involuntary action controlled by the brain. So breathing क्या है, ये एक involuntary action है जो कि हमारा brain control करता है। So when we breathe in, the body receives constant supply of fresh air. So जैसे ही हम लोग breathe in करते हैं, so हमारी body जो है उसको वो fresh supply of air मिलती है। and जैसे ही हम breathe out करते हैं, so carbon dioxide जो कि produce होती है हमारी body के अंदर, वो remove हो जाती है। So
सो ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। अब ब्रीदिंग के अंदर दो फेजेस है एंड वो दो फेजेस क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, टेक इन ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर। सो ये एयर जो है वो ऑक्सीजन में रिच होती है एंड इनहेलेशन के टाइम पर हमारे जो रिब्स है वो कहाँ मूव करते हैं, वो अपवर्ड्स मूव करते हैं एंड आउटवर्ड मूव करते हैं। एंड डायफ्राग्राम, बट जो डायफ्राग्राम का जो ओरिजिनल शेप होता है वो क्या होता है, वो डोम शेप होता है। डायफ्राग्राम जब रिलैक्स्ड होता है सो उस स्टेट पर वो एकदम इस तरीके का डोम शेप का होता है। सो नाउ बच्चों, इनहेलेशन के टाइम पे हमारा डायफ्राग्राम जो है वो इस तरीके से फ्लैट हो जाता है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है, राइट। सो नाउ अब इस डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से होता क्या है कि हमारी चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। सोचो पहले इस डोम शेप ने इतनी ज्यादा स्पेस ले रखी थी, बट जैसे ही ये फ्लैट हुआ तो इतना रीजन जो है वो क्या हो गया, खाली हो गया, जिसकी वजह से अब एयर जो है वो और ज्यादा आ सकती है। देन अगर हम बात करें एक्सहेलेशन की, सो एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी। सो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हमारे जो रिब्स है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मूव करते हैं एंड इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ चले जाते हैं। एंड ये अंदर की तरफ क्यों जा रहे हैं, सो दैट जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल कर आ जाए। एंड अब हमारा डायफ्राग्राम दोबारा जो है वो इस फ्लैटन शेप से दोबारा से इस डोम शेप में आ जाता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है। सो अब इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से हमारी चेस्ट कैविटी का जो एरिया है, हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम होता है और इस वॉल्यूम कम होने की वजह से ही हमारी एयर जो है वो बाहर आती है। सो अब हमारे पास दो एक्शंस है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और यही पार्ट है हमारे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का, और यही हमारा जो लाइफ है उसको विदाउट एनी इंटरप्शन चलाते जा रहे हैं। सो नाउ बच्चों, हियर वी हैव पिक अप मोर। सो जब भी हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड और ड्राउजी फील करते हैं, सो हम लोग क्या करते हैं, हम यॉन करते रहते हैं, हम उबास ही लेते रहते हैं। सो जब हम यॉन करते हैं, हम हमारे माउथ को बहुत ज्यादा वाइड ओपन करते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज इन ऑक्सीजन इनटेक हो पाता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जाती है, सो दैट अब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी एंड देन हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन कर सकता है। ऑल्सो अब ये हमारी यॉनिंग जो है वो हमारी फेस मसल्स, हमारी नेक मसल्स, हर चीज को स्ट्रेच करती है। सो इसकी वजह से हम लोग अलर्ट भी हो जाते हैं एंड हम लोग किसी भी बॉडी चेंज के लिए प्रिपेयर भी रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव ब्रीदिंग रेट। सो ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कितनी ब्रेथ्स ले रहे हैं पर मिनट। सो पर मिनट हम लोग कितनी ब्रेथ्स लेते हैं, दैट इज आवर ब्रीदिंग रेट। एंड ब्रीदिंग में दो चीजें होती है, क्या, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो ब्रीदिंग रेट जो है वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर सकता है, यानी कि हर किसी की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नीड जो है वो डिफरेंट होती है। बट हमारी जो ये ब्रीदिंग रेट है ये हमारी एक्टिविटीज के टाइम पे इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्टिविटी करते हुए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वेयरएज जब हम लोग एकदम रेस्टिंग मोड पे होते हैं तब हमारी ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, क्योंकि तब हमको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती। सो ये वेरिएशन जो है वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी को एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिलता रहे एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहे। सो नाउ बच्चों, अगर हम एक अडल्ट की बात करें, सो एवरेजली एक अडल्ट जो है वो 15 टू 80 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट जब वो रेस्टिंग स्टेज पे होता है। बट अगर वो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगी एंड ये पहुंच जाती है 25 ब्रेथ्स पर मिनट। अलॉन्ग विद दिस फास्टर ब्रीदिंग हम लोग और क्या करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग के साथ साथ हम लोग गहरी सांसें भी लेते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमको ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो मिल पाता है। सो दिस इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक ये किस चीज में हेल्प कर रहा है कि हमारे सेल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, हम लोग क्या कर सके, हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो एक्सेलरेट हो सके एंड रिलीज ऑफ एनर्जी जो है वो ज्यादा हो सके। सो इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद हम लोगों को भूख भी लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी होती है। सो नाउ बच्चों, व्हेन अ person feels drowsy or is at rest, their breathing rate tends to slow down. So जब भी कोई person rest पे होता है या फिर थका हुआ होता है, so उसका breathing rate जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। So इस decrease in breathing rate के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि अब less oxygen जो है वो ली जाएगी हमारी body के अंदर। So अब ये less oxygen की वजह से क्या होता है, feeling of fatigue और lethargy जो है वो भी हमको कभी कभी feel होता है। सो नाउ हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एंड यहाँ पर हम लोग ये शो करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा डायफ्राग्राम जो है वो वर्क करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इसके लिए हमको मटेरियल क्या चाहिए, एक बेल जार विद अ कॉर्क, स्ट्रॉ, रबर शीट, थ्रेड ऑफ टाइंग एंड 2 बलून्स। सो नाउ बच्चों,
मेथड क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से हम लोगों ने हमारे बलून्स को एडजस्ट करा है इस ट्यूब के अंदर। देन ये जार जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायफ्राग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो स्ट्रेचिंग हमारा बलून है ये डायफ्राग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसके बाद देखो हम लोग ऑब्जर्व क्या करने वाले हैं। सो जैसे ही रबर शीट को हम लोग पुल डाउन करते हैं, सो स्पेस जो है वो बेल जार के अंदर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इस रिडक्शन इन एयर प्रेशर की वजह से एयर जो है वो बाहर से अंदर आएगी। देन जैसे ही हम लोग इसको रिलैक्स छोड़ देंगे, तो अब क्या होगा, बेल जार के अंदर का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो इनसाइड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो अब जो एयर है वो हमारे अंदर से बाहर चली जाएगी। सो कंक्लूजन क्या है, ये एक सिंपल मॉडल है जो कि बता रहा है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को, हमारे डायफ्राग्राम के मूवमेंट को, एंड कैसे डायफ्राग्राम के मूवमेंट की वजह से हमारे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी में चेंजेस आते हैं, लंग्स जो है वो फिल हो जाते हैं विद एयर और एक्सपेल एयर। Now here we have compositions of inhaled and exhaled air. So बच्चों inhaled air के अंदर मोस्टली हमारे पास 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस भी होते हैं। सो नाउ एज एयर दे आर ट्रैवलिंग इनसाइड आवर लंग्स, ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इसको यूज किया जाता है सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट। सो इसको क्या किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लंग्स के अंदर वापस एंड इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है हमारी बॉडी से। हेंस एक्सेल्ड एयर जो है वो रिड्यूस, उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम होता है एंड इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑल्सो द एयर वी एक्सेल, उसके अंदर वाटर वेपर भी होता है एंड इस वाटर वेपर को हम लोग मॉइस्चर से फील कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग एयर को एक्सेल करते हैं एंड अगर आप लोग अपनी फिंगर्स को इस तरह से अपनी नोज के पास रखोगे और एक्सेल आउट करोगे, तो आप लोग फील करोगे कि जो एयर एक्सेल हुई है वो हल्की सी मॉइस्ट है, वो हल्की सी वार्म है। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी एक्सेल्ड एयर के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव गैसेस। सो आप लोग यहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है एयर का, उसको चेक कर सकते हो। सो हियर वी हैव थॉट शावर, डिस्कस व्हाई इज इट वाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। सो बच्चों रात के टाइम पे ट्री का क्या कर रहा होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है बल्कि वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है। सो रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। सो दैट इज वाई अगर हम रात को ट्री के नीचे बैठेंगे तो हमको ट्री से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सो व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल। सो ना बच्चों जैसे ही हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। सो अब ये ऑक्सीजन जो है वो इस सेल्स के थ्रू यूज किया जाता है ताकि वो एनर्जी को जनरेट कर सके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरह बिहेव करता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। सो ब्लड कैरी करके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड व्हेन वी इनहेल। सो नाउ हियर वी हैव पिकअप मोर। सो रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम, ये क्या कर सकता है, हमारी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, हम लोग और ज्यादा इनहेलेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा एयर ले पाएंगे एंड हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो हमारा यहाँ पर एम क्या है, दैट वी हैव टू शो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीदिंग के टाइम पर बाहर रिलीज करी जाती है। सो इसके लिए हमको 2 बीकर चाहिए जिनके अंदर लाइम वाटर होगा एंड 2 स्ट्रॉस चाहिए। सो मेथड क्या है, हम सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर क्या होता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड हम अब हम दोनों स्ट्रॉस को इन बीकर्स के अंदर रखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट बीकर के अंदर लाइम वाटर डालेंगे, बिल्कुल अनडिस्टर्ब रखेंगे एंड उसके अंदर जेंटली हम लोग स्ट्रॉस से क्या करेंगे, कुछ देर के लिए हम लोग एयर को ब्लो करेंगे एंड हमको बताना है कि अब हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं। सो ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि लाइम वाटर जो है वो सेकंड बीकर, तो यू विल ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर इन द सेकंड बीकर ये मिल्की हो जाता है। कंक्लूजन क्या है कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो रहा है। एंड क्यों मिल्की हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रही है, वो बबल हो रही है उसके अंदर से। एंड हमको ये पता है कि लाइम वाटर तभी मिल्की होगा जब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर वो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से एक मिल्की व्हाइट कलर आता है। सो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हम जो एक्सेल आउट करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। सो बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, इन सबके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं इनकी चेस्ट कैविटी के अंदर, जैसे कि किसी ह्यूमन के अंदर होते हैं। सो अब हमारे पास कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स है जो कि डिफरेंट तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ वर्म है जो कि अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिशेस क्या यूज करती है, गिल्स का, सो दैट वो लोग ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाए वाटर से। देन वेराज हमारे पास इंसेक्ट्स है जिनके पास एयर ट्यूब्स का सिस्टम होता है जिसको हम ट्रैकिए बोलते हैं। सो कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास जैसे कि एम्फीबियंस, वो लोग यूज करते हैं लंग्स का भी और स्किन्स का भी। सो इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है अपनी एनवायरमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग। सो नाउ वी हैव पिकअप मोर। सो फ्रॉग जो है उन वो कैसे ब्रीथ करते हैं, गिल्स के थ्रू, जब वो टैडपोल्स होते हैं। बट जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं। सो अडल्ट फ्रॉग्स वो रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू ऑन द लैंड। Now next we have respiration in earthworms and frogs. So बच्चों earthworms and frogs इनके पास अपना स्पेशल वे है ब्रीदिंग का। earthworms जो है वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं हमने अभी डिस्कस किया था, मॉइस्ट एंड स्लाइम स्किन की वजह से। अब इसकी वजह से होता क्या है, इनका मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्ट्रक्चर की वजह से मॉइस्चर जो है वो अलाउ करता है पास गैस को कि वो पास हो सकता है उनकी स्किन से। सिमिलरली फ्रॉग्स क्या कर सकते हैं, वो ब्रीथ कर सकते हैं स्किन के थ्रू एज वेल एज देयर लंग्स के थ्रू। सो स्किन के थ्रू उनके पास भी क्या होता है, मॉइस्ट एंड स्लिपरी सरफेस, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो पाता है। देन वी हैव रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। सो अगर हम बात करें कॉकरोचेस की और इंसेक्ट्स की, सो उनके पास एक यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास स्मॉल ओपनिंग्स होती है अलोंग साइड्स ऑफ देयर बॉडीज, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। सो अब एयर जो है वो एंटर करती है इन स्पाइरिकल्स के थ्रू एंड ट्रैवल करती है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिए। सो अब ये ट्रैकिए डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन डायरेक्टली टू देयर बॉडी टिश्यूज, जिसकी वजह से हमारा गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो पाता है। सो ऑक्सीजन जो है वो इनके हर सेल के अंदर काफी अच्छे से डिफ्यूज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्हीं ट्रैकियस के थ्रू बाहर आ जाती है। सो इस तरीके का सिस्टम जो है वो हमको इंसेक्ट्स तक में ही देखने को मिलता है एंड हमको ये किसी दूसरे एनिमल ग्रुप के अंदर नहीं देखने को मिला। Now next we have respiration in aquatic animals. So breathing under water ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। बट एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या है, एक यूनिक मेथड है जिससे वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाटर से। फॉर एग्जाम्पल फिशेस के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, गिल्स। सो गिल्स होते क्या है, गिल्स प्रोजेक्शंस है स्किन के जिनके पास भर भर के ब्लड वेसल्स होती है। सो जैसे ही वाटर फ्लो करता है इन गिल्स के थ्रू, सो ऑक्सीजन जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाती है इनके ब्लड के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाती है। सो इस सिस्टम की वजह से क्या होता है कि फिशेस सर्वाइव कर पाती है अंडर वाटर। So now बच्चों we have a thought shower, discuss why do fishes die when brought out of water. So fishes पानी से बाहर निकलते ही क्यों मर जाती है, क्योंकि फिशेस के पास लंग्स थोड़ी ना है जिससे वो पानी से बाहर आकर ब्रीथ करेंगी, उनके पास तो गिल्स है एंड गिल्स पे जब तक वाटर नहीं जाएगा तब तक वो लोग क्या करेंगे, वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग मर जाते हैं। Then here we have respiration in birds. So birds के पास क्या होते हैं, birds have lungs with air sacs. अब ये air sacs क्या करते हैं, जैसे इनके अंदर एयर भर जाती है, सो ये बर्ड की बॉडी को बहुत ज्यादा लाइट वेट बना देते हैं और इस अडेप्टेशन की वजह से बर्ड जो है वो काफी इजिली उड़ पाती है। Now here we have, do plants also respire to drive energy? क्या plants भी respiration शो करते हैं? So बच्चों हर plants के अंदर हर पार्ट क्या कर रहा होता है, वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है। सो नाउ ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पे हो रहा होता है, ये लीव्स में हो रहा होता है एंड किसके थ्रू हो रहा होता है, स्टोमेटा, जो कि टाइनी पोर्स होते हैं। सो ये स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को। यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर आने दिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने दिया जाता है। हाउएवर ओवर वाटरिंग अ पॉटेड प्लांट, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तभी हमको बोला जाता है कि हमको पानी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। एक्सेस वाटर जो है वो हमारे सॉइल को सैचुरेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो एयर पॉकेट्स है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं रूट्स की रेस्पिरेशन के लिए, वो ब्लॉक हो जाएंगे। सो जब हमारी सॉइल के अंदर वाटर लॉक हो जाएगा, वाटर जम जाएगा, तो उसकी वजह से अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रूट्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लैक कर जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है वो अच्छे से हो नहीं पाएगी एंड प्लांट की हेल्थ पुअर हो जाएगी, क्योंकि रूट्स जब तक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, रूट्स जब तक काम
नहीं कर पाएंगे तो प्लांट्स को वाटर, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? सो ओवर टाइम रूट्स जो है वो डैमेज सफर कर सकती है, उनकी ग्रोथ रुक सकती है. सो प्रॉपर वाटरिंग एंड इंश्योर वेल ड्रेन्ड सॉइल आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी रूट्स एंड ओवरऑल प्लांट वेलबींग. सो इसलिए हमारा यहाँ पर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए कि हमको प्लांट्स को कभी भी ओवर वाटर नहीं करना, हमको हमेशा प्रॉपर वाटरिंग करनी है एंड उनको हमको वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर रखना है. So now students, here you all have wrap up. So यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग एयर का यूज करते हैं सो दैट ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो पाए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अल्कोहल के अंदर इन द केस ऑफ यीस्ट एंड लैक्टिक एसिड के अंदर इन द केस ऑफ ह्यूमन मसल सेल्स. नाउ ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, इनहेल करते हैं हम लोग एयर को जो कि ऑक्सीजन रिच होती है एंड एक्सेल आउट करते हैं एयर को जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है. देन ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ जाता है जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. एंड ये ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ता है? ताकि हमारी बॉडी जो है वो हमारी हाई ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल कर पाए. देन ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राग्राम जो है वो मूव डाउन होता है, यानी कि फ्लैटन होते हैं, रिब्स अप होते हैं एंड इसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है एंड हम ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं. एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राग्राम दोबारा से मूव अप हो जाता है, रिब्स डाउन होते हैं, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होता है जिसकी वजह से एयर बाहर जाती है. देन एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो पाता है जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, बॉडीज नीड फॉर ऑक्सीजन. देन वी हैव लंग्स, ये हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स है जो कि क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर. एंड इवन गिल्स जो है वो यूज करे जाते हैं फिश के थ्रू सो दैट वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाए वाटर से. So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, then you have case study and prescribed questions as well. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter बहुत ज़्यादा interesting लगा होगा and अच्छे से समझ आया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.